व्हाट दे गेट इन रिटर्न, ओके इंटरेस्ट, ओके क्या बात है, ये कौन है, जमीन ने पहले ही समझ गया क्या पूछने वाला हूं मैं। ओके, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, इट इज प्री डिटरमाइंड, पहले से डिसाइड होता है, पहले से फिक्स होता है एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है, परफेक्ट। और साथ में प्रूफ के लिए बोला तो डिपॉजिट रिसिप्ट मिलता है, ठीक है। चलो आज वही पढ़ने का भी अपने को, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो, करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर, तो पहला जो लाइन है ना, पहला पढ़ लेता हूं मैं, अभी तुम लोग ने कुछ आंसर्स तुम लोग नहीं दे दिए। डिपॉजिट इज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस of the company. It is used to order satisfy short-term working capital needs of the company. Company cannot accept deposit for a period less than 6 months or more than 36 months. इसका भी आंसर आपने दिया। Company is liable to pay regular interest on the deposit fixed rate along with principal amount on maturity. Principal amount on maturity. Company secretary has to conduct correspondence with depositors regarding acceptance of deposit. देखो कौन कौन से केस में आएगा, acceptance of deposit, payment of interest, renewal of deposit, repayment of deposit. Acceptance of deposit, payment of interest, renewal and repayment, and so on. Secretary conducts such correspondence on behalf of company and also as per instruction of board of director. The secretary should be very cautious and careful while corresponding with depositor. अब आता है precautions to be taken by secretary while corresponding with depositor. चलो, सबसे पहला पॉइंट है लीगल प्रोविजन। बेटा ये पॉइंट है ना, शेयर्स में भी पढ़ा था, ये पॉइंट डिबेंचर्स में भी पढ़ा था, सेम है। The secretary should ensure the provisions related to invitation, acceptance, renewal, repayment of deposit duly complied with by the company. While corresponding with depositor, secretary should observe the legal provisions. अभी लीगल प्रोविजन ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013, लीगल प्रोविजंस ऑफ व्हाट, कंपनीज एक्ट 2013. Secretary must ensure that companies following company comply the rules and regulation provisions of Companies Act 2013, and not only Companies Act 2013, but if you remember उधर RBI भी आता है, उधर सेबी भी आता है, तो उसके भी रूल्स क्या करने पड़ेंगे, प्रॉपरली फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है courtesy, ये तो तीनों में कॉमन पड़ा था। पोलाइट रिप्लाई, प्यार से, प्यार भरी बातें, प्यार भरी बातें मतलब अपना वो प्यार भरी बातें नहीं, मतलब रूड वर्ड्स शुड बी अवॉइडेड। मतलब लेटर लिखने के टाइम पे जस्ट लाइक सामने वाले को ऐसा प्रिटेंड नहीं होना चाहिए कि हमसे रूडली बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है, रूडली बात कर रहा है। देखो समटाइम्स है ना, समटाइम्स सामने वाला कुछ लिखता है और हम लोग को, सामने वाला कुछ लिखता है तो हम लोग को क्या लगता है, अरे देख इसके लिखने का तरीका बहुत बेकार है। फॉर एग्जाम्पल समटाइम्स यस दैट वी आर इंसल्टिंग देम, जैसा मैं समटाइम्स होता है, अभी जमीन बुरा मत मानना, समटाइम्स जमीन कुछ लिखता है, जमीन का इंटेंशन नहीं होता वो लिखने का, जमीन का इंटेंशन नहीं होता है, बट वो पढ़ के क्या लगता है सामने वाले को कि वो कुछ अलग बोलने का ट्राई कर रहा है, कुछ उड़ाने का ट्राई कर रहा है, जस्ट लाइक सीम्स ऐसा लगता है, एक्चुअली उसका इंटेंशन नहीं होता है ऐसा बोलने का। ओके, so rude words should be strictly avoided. Next, prompt response. The secretary should give prompt reply to the queries and complaints of the depositor without any delay. Accuracy, accurate, later writing या correctness, आपने वहां पे एक पढ़ा होगा correctness करके, letter written on depositor, sorry, to the depositor should be accurate, precise. Accurate and precise, factual and correct information should be provided to them. Next है image and goodwill. While writing letter, secretary has maintained the goodwill of the company, has to maintain goodwill of the company. ये भी same point आया था। You attitude, consideration point पढ़ा होगा। factual बोला मतलब अभी जैसे कोई होता है या आप बोलते हो ये fact है मतलब correct है, ये appropriate information. So, you attitude. Letter should be written from depositor point of view after taking into consideration the requirement of the depositor. Like जैसा मैंने you attitude आपको बताया था, जैसे हम लोग ने एक लेटर के अंदर शेयर्स के अंदर पढ़ा था, योर कंपनी,
अब सेक्रेटरी ये लेटर लिख रहा है, बट क्या लिख रहा है? योर कंपनी। तो लगता है ना वर्ड बढ़ता है, क्या बोला? योर कंपनी एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप देखो बहुत सारे लेटर के अंदर या कभी कभी कस्टमर केयर में या कहीं पे भी बात करो, उन लोग ये बोलते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं बोलते कि ऐसा नहीं बोलते वी हैव प्रोवाइडिंग सो एंड सो टू यू, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अभी मैं बोलो वी हैव प्रोवाइडेड सो एंड सो टू यू, तो फिर ऐसा लगेगा कि भाई इन लोग कंपनी का नाम बड़ा कर रहे हैं, बट वही कस्टमर को बोलते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो भाई इसमें क्या होता है? कस्टमर का मान बढ़ता है, कस्टमर की रिस्पेक्ट बढ़ती है कि भाई कि कस्टमर बोलता है अरे ये तो मेरे को रिस्पेक्ट दे रहा है इधर पे। ओके, दैट इज यू एटीट्यूड। conciseness, briefness. The letter must be concise, that is short, brief and to the point. Unnecessary and irrelevant information should be avoided. जैसा मैंने तुम लोग को बोला कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग को बर्थडे विश हो गया, दिवाली का विशेष हो गए, तो हम खाली लास्ट में देखते हैं क्या? हैप्पी गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरया, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी दिवाली, उतना ही देखते हैं। मेरी क्रिसमस, उतना ही देखते हैं। बाकी ऊपर क्या बड़ा उन लोग ने गाथा लिखा है, पूरा पोयम लिखा है, वो कभी नहीं पढ़ते हम लोग, जस्ट खाली उतना लिखते हैं। क्यों? कंटाला आता है। बहुत बार आपने देखा होगा किसी ने आपको मैसेज भेजा, तो जो एक्सटेंड पॉइंट है वो तो साइड में रह गया, लेकिन पूरा बड़ा सा मैसेज भेज दिया। आप पूछते अरे बोलना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो? हाँ, बहुत तेज हो रहा है आजकल फेवियन, प्रेम कथा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे अभी तो। ओके, मम्मी को बोलना पड़ेगा, थोड़ा तो गियो। चलो नेक्स्ट है मैक्सिमम सिक्रेसी। It is necessary to maintain maximum secrecy regard secretarial correspondence with depositor. चलो बैक टू द वर्क। सिक्रेसी, ये पॉइंट भी हम लोग ने पढ़ा था कि लेटर राइटिंग के टाइम पे देखो सेक्रेटरी इज कंसिडर्ड एज अ कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। सो उसमें एक क्वालिटी होती है लॉयल्टी करके, कि भाई ये कंपनी का कोई भी इंपॉर्टेंट कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर वालों को नहीं बताएगा, इवन शेयर होल्डर को भी नहीं बताएगा। रीजन क्या है? तो शेयर होल्डर भाई खाली ना मीटिंग के लिए आते हैं, बाकी का इंटरनल मैनेजमेंट संभालने का काम किसका है? तो इंटरनल मैनेजमेंट संभालने का काम सेक्रेटरी का है, एज वेल एज किसका है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का है। तो कंपनी की कुछ बातें जो होती है वो सीक्रेट रखनी पड़ती है, तो वो सीक्रेट बातें लेटर के अंदर नहीं आए, ये बात का ध्यान रखना पड़ता है। Circumstances under which secretary has to enter into correspondence with deposits. चलो 4 लेटर है, देखो 4 लेटर है। पहला, thanking depositors for depositing amount and showing faith in the company. thanking letter, thanks to you, पैसा देने के बाद। जैसा भी फॉर एग्जांपल कोई अपने को छोटा भी अमाउंट हेल्प कर देता तो हम लिखते हैं ना थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेटिट्यूड शो करते हैं ना कि भाई आपने दिया, तो बहुत अच्छी बात है। Intimation about payment of interest warrant, electronic payment. Later informing about renewal of deposit. आप देखो कभी आपके पास बैंक में फिक्स डिपॉजिट होगा, तो फिक्स डिपॉजिट में मैच्योरिटी डेट में आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो सेम पीरियड के लिए वो पूरा अमाउंट क्या करो, सेम पीरियड के लिए पूरा अमाउंट रिन्यू करा दो, सेम पीरियड के लिए पूरा अमाउंट क्या कराओ, रिन्यू करा दो। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट कि वो अमाउंट आप क्या कर लो, विड्रॉ कर लो, या वो डिपॉजिट का आप क्या करो, रीपेमेंट करो। एम आई राइट? ऐसा ही होता है। घर पे आपके पास मम्मी पापा के पास किसी के पास होगा या आपके नाम का होगा तो आपको पता होगा, नहीं तो मम्मी पापा को पूछना फिक्स डिपॉजिट कैसा है, क्या दिखता है, वो आपको बताएंगे वहां पे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग कि फिक्स डिपॉजिट के अंदर भी सेम केस है, डिपॉजिट के अंदर भी सेम केस है कि 2 ऑप्शन होता है, या तो रीपेमेंट का ऑप्शन आता है या तो रिन्यूअल का ऑप्शन आता है, या तो रीपेमेंट का या तो रिन्यूअल का। ठीक है, चलो तो टोटल 5 लेटर है, 5 मतलब 4 लेटर है। इंटरेस्ट का 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्या 2 पार्ट में? एक तो इंटरेस्ट वारंट एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। चलो सबसे पहला लेटर है थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद द कंपनी। चलो भाई बहुत खुश हो गए इधर पे अभी, क्योंकि थैंक यू क्यों बोल रहे हैं भाई, जरूरत था दिया कंपनी ने। The letter of thanks is sent to the depositor by company immediately after receiving the deposit. The letter give detailed information. क्या क्या है? Amount, date, period. फिर deposit receipt which is a proof of receipt. देखो आगे deposit receipt कब देना चाहिए? Within 21 days from the date of acceptance. Objective में आता है
ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। चलो तो किसका लेटर पढ़ रहे हैं हम लोग? थैंकिंग डिपॉजिटर्स, थैंकिंग डिपॉजिटर के लिए लेटर पढ़ रहे हैं। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये इधर आ गया देखो, ये अपना तुम लोग तुम्हारे हिसाब से फिक्स कर देना। इन वेरी फर्स्ट लेक्चर मैंने तुमको बताया किस तरीके से करने का, मैंने गाइड किया किस हिसाब से करने का। नाउ इट्स अप टू यू। अब रेफरेंस नंबर देखो, ये 1920, ये तो फाइनेंशियल ईयर हो गया। जी फॉर गुरु, गुरु का जी कंपनी का नाम। अब इधर पे डीईपी आ गया। अब डीपी आ गया, डीपी स्टैंड्स फॉर, डीपी स्टैंड्स फॉर डिपॉजिट या डिपॉजिटर, दोनों में से कुछ भी। डिपॉजिट ले लो, डिबेंचर होल्डर ले लो, शेयर होल्डर का एसएच ले लिया, वॉट एवर जो तुमको चाहिए, डिपॉजिट या डिपॉजिटर, डिपॉजिट या डिपॉजिटर। देखो रेफरेंस के लिए कैसा एड़ा बनाते हैं ना तुम लोग को। बाद में अपने पसंदीदा कोई भी नंबर, 4 हो गया इधर पे, डेट, डेट आ गया इधर पे। चलो अब पढ़ाई के इनसाइड लिए एड्रेस, मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। अब इनसाइड एड्रेस आ गया, थैंकिंग डिपॉजिटर फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट। चलो, डियर सर, वी आर इन रिसिप्ट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 5th अप्रैल 2019। देखो 10th अप्रैल को लेकर 5th अप्रैल 2019 फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख in fixed deposit as per terms and condition stated in advertisement। ये एडवर्टीजमेंट दिया है डिपॉजिट के लिए, तो मेरे को एक बात बताओ, ये डिपॉजिट किसको दिया है, किसके पास से लिया, पब्लिक के पास से या मेंबर के पास से? पब्लिक के पास से, मेंबर के पास से? मेंबर के पास से। अच्छा जमीन मेंबर के पास से आपने बोला, बाकी का मैंने आंसर अप्रूव नहीं किया अभी तक। मेंबर के पास से आपने बोला, तो पब्लिक के पास से लेने के लिए, पब्लिक के पास से लेने के लिए क्या एडवर्टीजमेंट या सर्कुलर? पब्लिक के पास से एग्जैक्टली सर्कुलर। पब्लिक के सॉरी, मेंबर के पास से सर्कुलर होता है, पब्लिक के लिए एडवर्टीजमेंट होता है। तो ये पब्लिक को दिया हुआ है। आर्या और जमीन समझो थोड़ा सा, पब्लिक के लिए एडवर्टीजमेंट है, मेंबर के लिए सर्कुलर है। गलती मत करो, ठीक है। चलो, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years। और मैंने बोला कि मैंने किसी का आंसर अप्रूव नहीं किया, तो आर्या ने झट से पलट दिया। वही आदत है, क्या वो डायलॉग है ना, क्या वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, वैसा आर्या का है। मैंने जब बोला मैंने किसी का आंसर अप्रूव नहीं किया, तुरंत पलटी मारी। चलो, we are thankful to you for invite and the trust you have shown in depositing substantial amount in our company। चलो पॉइंट, अभी आप कोई भी ध्यान से सुनना, अभी आप कोई भी फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, राइट, कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। फिक्स डिपॉजिट लिया तो सबसे पहला रिसिप्ट है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, तो पहला रिसिप्ट नंबर आता है। कोई भी पॉइंट है, रिसिप्ट नंबर। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट और कितने साल के लिए डिपॉजिट किया वो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी आपने कहीं पे डिपॉजिट, आप कभी डिपॉजिट करने जाओगे तो आप इंक्वायरी करोगे, तो इंक्वायरी करने में आप पहले पूछोगे कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए कर सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। देखो तीनों आपके सामने है। और अगर आपको सामने से अप्रूवल मिल रहा है, सामने से आपको कंफर्म हो गया है, तो आपको डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर
अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, पीरियड ऑफ डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आगे आएगा बैंक डिटेल। सर बैंक डिटेल क्यों? तो रीजन ऐसा है बेटा कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होगा। यूजुअली कंपनीज चेक में या कैश में पैसा नहीं लेते, अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ता है। कौन मगजमारी करेगा दुनिया भर में? तो इसके लिए देखो नेम ऑफ बैंक आ गया और बैंक अकाउंट नंबर आ गया जहां से पैसा डिडक्ट हो गया। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्सप्रेस इट्स ग्रेटिट्यूड फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर कंपनी। भाई बहुत खुश हो गए। We assure you of best services and thank you for confidence shown in our company. Thanking you. सर इंटरेस्ट ओन से लेना होता है, समझा नहीं आ रहा, आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया मेरे को। चलो आ रहा का डाउट आता है तब तक हम देखते आगे। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर गुरु इंडस्ट्री लिमिटेड, साइन मिस्टर नितिन मोदी, जनरल मैनेजर एंड कंपनी सेक्रेटरी। और साथ में देखो एनक्लोजर दिया है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट नंबर 678। अभी आर्या का डाउट, सर इंटरेस्ट हम अपनी चॉइस से ले सकते हैं? बेटा इंटरेस्ट हम अपनी चॉइस से नहीं ले सकते। अब अगर मैं बैंक की बात करूं, ध्यान से सुन लेना, बैंक की बात करूं तो बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, अमाउंट वेरी होता है। पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करोगी तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। फिक्स मतलब क्या कि आपको पूरे साल फिक्स मिलेगा। फेवियन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे। बैंक में कभी जा तो बैंक में सपोज आपने 1 लाख डिपॉजिट किया, एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख डिपॉजिट किया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12.5%, 5 साल के लिए किया तो 5 साल आपको पर ईयर 12.5% मिलेगा। इफ आपने 90,000 का लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, 11% हो गया, तो पूरा साल आपको 11% मिलेगा। ये बैंक की बात कर रहा हूं, ये बैंक की बात कर रहा हूं। अच्छा मतलब एग्जाम में लिखने की बात कर रही है बेटा, एग्जाम में लिखने की बात कर रही है। अच्छा एग्जाम में ऐसा बोलना, मेरे को लगा रियलिटी की बात कर रही है। हाँ एग्जाम में तो इमेजिनरी है बेटा, तुम 12.5% ले लो, 10% ले लो, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी कंपनी है, तुम कितना दे रहे हो। मैं थोड़ा सा ये हो गया, भटक गया था, बोला लगता है ऐसा बोल रही है। नहीं, कंपनी में एक फिक्स परसेंट रखते हैं, भले तू 1 लाख रुपए जमा कर, भले तू 5 लाख रुपए जमा कर, कंपनी में रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है। और बैंक के अंदर जैसे अमाउंट वेरी होते हैं वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वेरी होता है। एग्जाम में तो अपने हिसाब से लिखने का बेटा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। चलो इंटरेस्ट तो डिपॉजिट बोरोड कैपिटल, एंड बोरोड कैपिटल पे क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट एज अ रिटर्न, interest as a return. This letter is sent by company to depositor when interest on deposit become due. अब इधर पे कंपनी एक इंटरेस्ट वारंट और इलेक्ट्रॉनिकली। अब बेटा याद रखो, इंटरेस्ट है इनकम है, इंटरेस्ट है इनकम है, इनकम टैक्स वाला बैठा है कुछ डिडक्ट करने के लिए। क्या डिडक्ट करने के लिए बैठा है बोलो? इनकम टैक्स वाला बैठा है डिडक्ट करने के लिए। क्या बोलते हैं उसको? टीडीएस बोलते हैं। वेरी गुड, आने दो आंसर आने दो, अब सब रुक जाएंगे तो बैठ जाऊंगा साथ में। चलो टीडीएस बोलते हैं। कितना परसेंट टीडीएस? टीडीएस कितना परसेंट? टीडीएस 10%। अभी बेटा क्या नाम है, किधर गई आर्या? ये टीडीएस 10% कंफर्म है, ये 10% कंफर्म, इधर कुछ अपना दिमाग में लगाने का। और कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है? कितना अमाउंट अगर एक्सीड हो गया तो? ओके क्या बात है, 5,000 के ऊपर, 5K। ओके, if amount of interest is exceed rupees 5,000, more than 5,000, then 10% TDS will deducted। ठीक है, चलो ये भी लेटर स्टार्ट करते हैं अपन। चलो लेटर स्टार्ट कर दिया, ऊपर का इंफॉर्मेशन सेम। चलो रेफरेंस में देखो, किशोर का के, डिपॉजिटर का डीईपी, नंबर, फाइनेंशियल ईयर। चलो इनसाइड एड्रेस हो गया। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। चलो
Dear madam, I am instructed by the board of director to inform you that interest at the rate 10% on your fixed deposit approved by board has become due. We are enclosing here with interest warrant number 3345 dated 25 जुलाई 2019. अच्छा, थोड़ा आपने कभी ऑब्जर्व किया क्या, जब हम लोग डिबेंचर पढ़ रहे थे तो इंटरेस्ट वारंट का एक कॉलम था. हेलो, कुछ ऑब्जर्व किया आपने? जब हम डिबेंचर्स पढ़ रहे थे देन डिबेंचर्स में इंटरेस्ट वारंट का एक कॉलम था, शेयर्स में डिबेंडेंट वारंट का था, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट वारंट का था. वो लास्ट में लिखा था. मैंने बोला देखो लास्ट और पहला किधर भी लिख सकते हैं. देखो बाकी लोग एकदम सन्नाटा, शांत. तर काय माहित नाही, कारण बुक ओपन केलंच नाही आम्ही. આપણે શું ખાવાના પીવાની મજા કરવાનું, પછી સુવાનું, બસ બધું થઈ ગયું આપણું. એમ જ ચાલે ને? असंच आहे आपलं सर. खाने का, पीने का, सो जाने का. पढ़ाई का क्या है, कौन करेगा? पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा है, विकास सर है, सर बैठे हैं, वो पढ़ाई करेंगे. हमको क्या है, जिंदगी के मजे लेने के. बराबर ना? હવે ન હોય એવે ન હોય, એમ જ છે દીકરા. હજી બહુ થઈ ગયું, બસ પાણી સીડશો